हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमें डार्लो की बैक स्टोरी पता चली थी। अब टीम वॉइड ने इस सिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो अब हमें इस रूट पर ऊपर जाना है। ओके, तो चलते हैं फिर। आप देख सकते हो टीम वॉइड के कुछ ग्रंट यहाँ पर रुके हैं और डार्लो भी ऊपर रुका है, तो चलते हैं वहीं पर। कट द क्रैप आउट एंड टॉक। आई एम स्टार्टिंग टू गेट टायर्ड ऑफ टीम वॉइड एंड इट एक्शंस. You sound very violent. Do you battle like that too, Ash? And thank God you arrived just in time. Oh, don't worry, I am fine, but that creep is very strong. What? So he is the boss of Team Void. He is not a small deal, that's for sure. Finally, you are here. What took you so long? Shinu, at last we have our hero to the rescue. It's nice seeing you, Ash. And you could see your friend didn't put up such a great fight. He's like a dog who barks but doesn't bite when he needs to. Anyway, it looked like you didn't accept my advice and you kept chasing us. You got balls, kid. I give you that. You really think that we are the bad guys here, don't you? Yeah, everyone thinks that. You are no different then. Though I saw the potential in your to understand. We're just trying to make a better world where people will help each other no matter what. There won't be able more betrayal, no more reneging. I hope you understand everything now and won't get in our way anymore. Every unit that hears me, we are done here. We have gotten everything we needed. Everyone gather on the ship. We are leaving. To understand that my actions aren't exactly evil as you think, I won't do anything to you nor to your friend. If you are mature and smart enough, you will understand. If you don't, well, then I guess we will see each other even soon. तो हम ज़रूर मिलेंगे. टेक केयर ऐश. आई हैव माई फेथ इन यू. दिस गाय गिव्स मी चिल्स द वे ही स्पीक्स. इट्स सो claim yet dangerous. I am flying after them and see where they are going. Maybe they will lead me to their base. Take care. That creep is scary. You really are brave if he warned you. And you really didn't listen. I don't understand why are they doing all of this if what they really want is what he said. I seriously don't understand people sometimes. Anyway, I'll heading to the gym. तो शायद ये अब जिम में जा रहा है, तो हमें भी अब वहीं पर जाना चाहिए. देखते हैं यहाँ से राइट. इससे बात करके देखते हैं. ओके, तो वो कुछ नहीं कह रहा, तो इस सेलर से करते हैं. Those bastards took my ship. What do they think that if they arrived with a huge ship in first place? ओके, शायद यहीं पर है जिम. आप देख सकते हो. देखते ये किस टाइप का जिम है, देख लेते हैं अंदर चलकर. हेलो देयर चैम्प. यू प्रोबेबली डिडंट नो बट दिस जिम इज़ अ फाइटिंग टाइप. तो फाइटिंग टाइप जिम है, तो हमारे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी. तो एक बार हम सबसे पहले टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जिम लीडर से बैटल करेंगे. ओके, तो नीचे चलकर सबसे पहले हम टाउन को एक्सप्लोर करते हैं. ओके, तो अपने पोकेमॉन को सबसे पहले हम हील कर लेते हैं. तो ग्रंट्स यहाँ इस पोकेमॉन सेंटर में क्या कर रहे हैं. द पोकेमॉन सेंटर हैज़ टू बी टेकन. एज लॉन्ग एज वी आर हेयर यू वॉन्ट मूव even an inch from where you stand. What the? Didn't Shino say that we are leaving? Wait, what is this kid doing here? Didn't a grunt from a unit A guard the entrance? Speaking of unit A, it's very quiet outside. What happened? Did the units leave the area? तो अब जा चुके हैं, अच्छी बात है. Thanks for well entering the building. If you hadn't, they probably wouldn't have noticed that they are gone. Here, take this. तो हमें HM2 मिला है. वैसे HM2 तो फ्लाई है, तो मैं उसे अपने पोकेमॉन को सिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक
हम जिस जिम में जाने वाले वो एक फाइटिंग टाइप है, इसलिए तो बस फ्लेचिंडर ये सीख सकता है, तो मैं उसी को सिखाने वाला हूँ। तो मैं रोस्ट को हटा देता हूँ। तो पोकेमॉन हील करके चलते हैं जिम में। ओके, देखते कुछ आइटम्स भी हमें खरीदने चाहिए, तो खरीद लेते हैं आइटम्स भी। देखते हैं यहाँ पर कौन से डिफरेंट आइटम्स मिल सकते हैं। तो मैं सुपर पोशन खरीद लेता हूँ, मिनिमम 3। तो हमें सुपर पोशन ही खरीदने चाहिए। ओके, मे बी इनफ। देखते ही और कौन से रेयर आइटम है, कुछ नहीं। ओके, टाउन को हमें एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। देखते हैं इस घर में, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं। लेफ्ट में देखते हैं इस ओल्ड मैन से बात करके। माई सेकेंड ग्रैंड किड इज़ सो नाइस एंड क्यूट, माई फर्स्ट इज़ अ बिट वेल डिफरेंट। ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर एक लड़की है, देखते हैं। शी इज स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, तो वो बस टीवी देख रही हैं। इससे देखते हैं। ओके, कुछ नहीं। तो राइट में देखते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं। यहाँ पर हम तो यहाँ पर बहुत सारे घर हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है। देखते हैं इनसे बात करके। वी मूव्ड हेयर रिसेंटली विथ माई हस्बैंड एंड द सिटी वॉज टेकन ओवर। तो इससे बात करते हैं। वी मूव्ड हेयर, ओके, ये भी वही कह रहा है। तो ऊपर देखते हैं एक बार क्या है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो शायद हमें सीधा अब जिम में ही चलना चाहिए। इस घर को एक बार देख लेते हैं। माई सन स्टडीज टू बी अ डॉक्टर, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ओके, तो चलते हैं अब सीधा जिम में ही। वैसे जिम लीडर एक फाइटिंग टाइप है और हमारे पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो देखते हैं हमें शायद प्रॉब्लम तो फेस करनी नहीं पड़ेगी उसे हराने में। फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं हमसे बैटल करने के लिए, तो कर लेते हैं उनसे बैटल। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा ट्रेन भी कर लिया था। आप देख सकते हो मैंने सभी पोकेमॉन को लेवल 27 का कर दिया है। तो कर लेते हैं इससे बैटल। तो हम इसे रिवेंज देंगे क्योंकि ये एक डार्क और फाइटिंग टाइप है इसलिए, और ये पॉइजन भी हो गया, अच्छी बात है। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है, ये एक ही बार में फेंट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो एक गर्डर आ रहा है, तो हम स्विच नहीं करेंगे, इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसे रिवेंज ही देता हूँ। आप देख सकते हो क्रोगन की एबिलिटी कितनी अच्छी है, ये सभी पोकेमॉन को पॉइजन कर देता है। ओके, इस बार ये फेंट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब। हमें सभी ट्रेनर को हराना ही होगा क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए। इसके पास 3 पोकेमॉन है, एक रियोलू। तो मैं इसे रिवेंज ही देने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम शैडो बॉल। इसका डिफेंस भी कम हो गया। मैंने सभी पोकेमॉन को अच्छे अच्छे मूव सिखा रखे हैं। इस बार रिवेंज। ओके, हमारा पोकेमॉन 4 HP पर बच गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम हम पोकेमॉन को स्विच कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक क्रोगन का आ रहा है, तो मैं फ्लेचिंडर को निकालूंगा। तो हम इसे देंगे पीक। ओके, तो ये इसने हमें कंफ्यूज कर दिया। नो प्रॉब्लम। ओके, ये हमारे पोकेमॉन को शायद फेंट कर देगा, देखते हैं। ओके, फ्लेचिंडर ने ही उसे फेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक मैन की। तो मैं डिवॉट को निकाल लेता हूँ और मैं इसे देता हूँ रेजर शेल। बहुत अच्छे। नेक्स्ट टाइम हम इसे वाटर पल्स देंगे। ये मूव इसने रिसेंटली सीखा है। ओके, चलते हैं अब। और बहुत सारे ट्रेनर हैं जिनसे हमें बैटल करनी है।
ओके, एक ही ट्रेनर है शायद, तो मैं फ्लेचिंडर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। आ जाओ आप भी। ओके, इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इसे सीधा फ्लाई ही देता हूँ क्योंकि फ्लाई का अटैक ज़्यादा है इसलिए। ओके, एक और फ्लाई लगेगा इसे फेंट करने में, नो प्रॉब्लम, फेंट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक सुपर पोशन का यूज़ कर लूँगा। तो शायद एक और ट्रेनर है, उसके बाद लीडर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस बार मुझे सुपर पोशन का यूज़ करना था। ओके, चलते हैं अब नीचे। ओके, बहुत सारे ट्रेनर हैं, आप देख सकते हो, और 2 ट्रेनर हैं। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं सभी से, क्योंकि हमारे पास फ्लाइंग टाइप है तो अच्छी बात है, वरना दूसरी टाइपिंग से हम बैटल करते हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी हमें। हम इसे फ्लाई ही देते रहेंगे। बहुत अच्छे, ये तो एक ही बार में फेंट हो गया। तो एक पैंचम आ रहा है तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करेंगे। आप भी अपने पोकेमॉन को फ्लाई ज़रूर सिखाना इस जिम लीडर से बैटल करने से पहले। आपको ये HM पोकेमॉन सेंटर में ही मिल जाएगा। तो एक मैचअप आ रहा है, तो मैचअप को तो बस एक सिंगल टाइपिंग ही मिली है, जस्ट फाइटिंग। उसका फाइनल एवोल्यूशन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। वो इवॉल्व होने के बाद भी फाइनल एवोल्यूशन में उसकी सिंगल टाइपिंग ही होती है। तो हमने इसे भी हरा दिया। फ्लेचिंडर लेवल 29, ये 35 पे इवॉल्व हो जाता है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। आप देख सकते हो, और 2 ट्रेनर से हमें बैटल करनी है। तो इसके पास एक मॉन्फर्नो है, तो मैं इसे पीक देता हूँ। इसकी मॉन्फर्नो की टाइपिंग फायर और फाइटिंग है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर से इसे एक पीक दूंगा, फिर ये फेंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अब। तो एक पिगनाइट आ रहा है तो मैं स्विच नहीं करूँगा। इसकी भी टाइपिंग सेम है, फायर और फाइटिंग, और एक ही बार में फेंट हो गया। तो चलते हैं अब। शायद एक और ट्रेनर है, देखते हैं। देख सकते हो एक और ट्रेनर बचा है। वैसे इस जिम में बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स हैं हमें परेशान करने के लिए। मैं इसे भी फ्लाई ही देता हूँ। इस पोकेमॉन की टाइपिंग है ग्रास और फाइटिंग, बहुत यूनिक टाइपिंग है उसकी। फ्लेचिंडर लेवल 30 का हो गया है। तो एक गर्डर आ रहा है, फिर से हम इसे फ्लाई ही देंगे। ओके, इसने बाइड का यूज़ किया। ओके, उसका अटैक मिस हो गया। ओके, रॉक थ्रो तो बहुत ही डेंजर मूव था, तो मैं इस बार क्रोगन को निकालूंगा और मैं इसे एक रिवेंज दूंगा। शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। क्रोगंक लेवल 28। क्रोगंक लेवल 37 पे इवॉल्व होता है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। तो बस अब जिम लीडर ही बचा है, तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, तो करते हैं अब उससे बैटल। वेलकम टू माई जिम। यू प्रोबेबली डिडंट नो बट वी यूज दिस जिम एज अ डोजो टू। आई एम द मास्टर ऑफ दिस डोजो एंड so called gym leader. However, I am a gym leader just for fun, but nowadays it got kinda boring. There were only a handful of trainers who couldn't defeat me, and most of those were just lucky. Anyway, let's get through this. The badge is why you are here after all. तो हमें इससे अब बैटल करनी है। तो इसके पास स्क्रैगी है, तो मैं फ्लाई का ही यूज़ करूँगा। स्क्रैगी की टाइपिंग बहुत यूनिक है, डार्क और फाइटिंग। ये टाइपिंग उसे एडवांटेज भी देती है और डिसएडवांटेज भी।
ओके, इस बार रियोलू है तो ये इसे फेंट कर देगा एक ही बार में। ओके, एक माचोक आ रहा है तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है और ये एक ही बार में फेंट नहीं हुआ। ओके, तो बहुत ज़्यादा फिर से हम फ्लाई का ही यूज़ करेंगे। तो ये अपना डिफेंस बार बार बढ़ा रहा है, आप देख सकते हो। तो इसने साइस्मिक टॉस का यूज़ किया, हम फिर से फ्लाई का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। ओके, शायद हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाए लेकिन ये बच गया, अच्छी बात है। मैं अब सुपर पोशन का यूज़ करूँगा और वो भी 2 सुपर पोशन का। ओके, नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हम डायरेक्ट अटैक करेंगे अब। तो एक और फ्लाई लगेगा उसे फेंट करने में, देखते हैं। अरे फेंट हो गया, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अब। तो एक हिटमॉन्चैन। ओके, तो मैं फ्लाई का ही यूज़ करता हूँ डायरेक्ट। ओके, ये इसका डिफेंस की वजह से वो बच गया। तो नेक्स्ट टाइम उसे कोई दूसरा पोकेमॉन फेंट करेगा हमारा, तो मैं क्रोगंग को निकालता हूँ। तो हम इसे शैडो बॉल देंगे। ओके, तो इसे साइकिक आता था, देखते ये इसे फेंट कर देता है कि नहीं। ओके, इसने फेंट नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम उसे कोई दूसरा पोकेमॉन फेंट कर देगा। तो मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ और पिकाचू ने रिसेंटली थंडरबोल्ट सीखा है और ये फेंट हो गया। और अब हमें मिलेगा हमारा जिम बैच। दिस बैटल वॉज क्वाइट दैट समथिंग आई हैवेंट said for a while. Well, take this, you really deserve it in my book. तो हमें बैज मिला है, यह है ट्रेनिंग बैज। also accept this। तो हमें TM1 भी मिला है, यह है फोकस पंच। ओके, फोकस पंच एक फाइटिंग टाइप मूव है। तो अब बाहर चलते हैं, हमने जिम लीडर को तो हरा दिया। तो अब हमें जाना कहाँ है देखते हैं। तो ये कौन है अब, तो प्रोफेसर वेटल्स यहाँ पर आ गए। आई हर्ड फ्रॉम लॉरी वॉट हैपेंड देयर, यू रियली heroic for standing against Team Void, maybe too heroic. Anyway, you walk out the gym, so does that mean you really got the badge? तो अभी तो मिला हमें। To tell you the truth, I really proud of you. I remember the time when I asked that favor, you come back frightened by Laurie's Sceptile. You have already changed so much, being this far in the league challenge, standing up for people against that gang. I really feel like you can accomplish anything, but I need to ask a thing from you, and please take it very seriously. Stop this affair with Team Void. I know you had everything under control, but what if something happens to you? I would feel responsible for it. I seriously need you to understand. तो हमें तो कुछ नहीं होगा। As we know, this isn't just a simple gang of, it's a serious organization with money, power, influence, and team accomplished what they want. Anyway, I'll get going. तो आप जा रहे हैं। I almost forgot you probably. ओके, तो अब हमें फ्री सिटी में जाना है। ट्रूथ, यू विल डेफिनेटली नीड दिस। तो हमें HM3 मिला है, HM3 सर्फ है शायद। ओके, फाइनली हमें सर्फ मिल गया है। तो मैं उसे अपने पोकेमॉन को सिखा देता हूँ। तो हमारा एक ही पोकेमॉन वो सीखेगा जो कि है डिवॉट। तो हम किसे हटाए देखते हैं। तो मैं वाटर गन को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे, तो चलते हैं अब। तो गाइज़ मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज़ मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है और आप जैसा कि आप देख सकते हो हमें अब फ्लाई करके फ्री सिटी में जाना है। ओके, फ्लाई का यूज़ करना है हमें। और हमें सर्फ SGM भी मिल गया है, वहाँ से हमें सर्फ करके उस जिम में जाना है।
जो कि यहाँ पर था पहले, यहाँ से राइट। ओके, हमें नीचे से जाना था, आप देख सकते हो हमें यहीं से जाना है। ये जिम में जाने के लिए हमें सर्फ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने सर्फ अपने पोकेमॉन को सिखा दिया था। तो चलते हैं सीधा जिम में। तो ये किस टाइप का जिम है देख लेते हैं एक बार। ओके, इससे बात करके देखते हैं। वेलकम टू द फ्री सिटीज जिम, दिस इज़ अ क्वाइट स्पेशल जिम बिकॉज इट्स वेरी फर्स्ट टू। ओके, डार्क टाइप, अच्छी बात है। ओके, चलते हैं अंदर। कोई ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं। तो ये हाई ड्रैगन का स्टैचू है, इट्स अ स्टैचू ऑफ अ डार्क टाइप पोकेमॉन। वैसे हाई ड्रैगन का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो मैंने अपने फाइटिंग टैग को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लिया, तो सबसे हम बैटल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके पास एक नज़लीफ है, तो मैं रिवेंज का यूज़ करता हूँ। नज़लीफ की टाइपिंग है ग्रास और डार्क, बहुत अच्छे। इसने इसे एक ही बार में फेंट कर दिया। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट एक माइटी आना है। इसकी टाइपिंग है डार्क और नॉर्मल, तो फाइटिंग टाइप तो इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, तो इसका डिफेंस ज़्यादा है इसलिए इतना असर नहीं हुआ, लेकिन ये इस बार तो फेंट हो गया। तो एक लाइपर्ड आ रहा है, तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करेंगे, हम इसे रिवेंज ही देते रहेंगे। ये पॉइजन भी हो गया, आप देख सकते हो। क्रोगन कितना अच्छा पोकेमॉन है, ये अपने आप फेंट हो जाएगा पॉइजन की वजह से। क्रोगन लेवल 29 और ये सीख रहा है मड बॉम्ब, एक ग्राउंड टाइप मूव, तो हम इसे ज़रूर सिखाएंगे। तो मैं पॉइजन स्टिंग को हटा देता हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम कोई अच्छे मूव को इसे सिखा देंगे। तो चलते अब नीचे। तो ये एक डोजो मास्टर है, इसके पास भी लेकिन डार्क टाइप ही होंगे, तो हम इसे सीधा रिवेंज ही देंगे, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। पे बैक का तो हम पर असर नहीं होगा फाइटिंग टाइप की वजह से, तो ये अपने आप ही फेंट हो गया पॉइजन की वजह से, तो हमने इसे भी हरा दिया। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, इसे भी हरा देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हें भी बहुत जल्दी फेंट कर देंगे। इसके पास एक सैंडाइल है। ओके, शायद हमें स्विच करना होगा क्योंकि सैंडाइल की टाइपिंग ग्राउंड भी है, इसलिए ये क्रोगन को बहुत जल्दी फेंट कर देगा। आप देख सकते हो उसने ग्राउंड टाइप मूव का ही यूज़ किया। तो मैं इसे रेजर शेल देता हूँ, देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक क्रोकोरॉक है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा, हम इसे सर्फ देंगे। ये एक ही बार में फेंट तो हो जाना चाहिए, देखेंगे। और हो गया, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक ट्रबिश आ रहा है। तो ट्रबिश की तो वैसे टाइपिंग जस्ट पॉइजन है, पता नहीं। ओके, एक और सर्फ लगेगा इसे फेंट करने में, और ये फेंट हो गया। तो नेक्स्ट एक गार्बोडर आ रहा है, ये ट्रबिश का फाइनल एवोल्यूशन है, तो मैं इसे रेजर शेल देता हूँ क्योंकि इसका डिफेंस भी कम होगा, इसकी वजह से हम इसे रेजर शेल ही देते रहेंगे क्योंकि इसका डिफेंस भी कम होना चाहिए, वरना ये हमें बहुत परेशान करेगा। ओके, फिर से रेजर शेल। ओके, इसने खुद को थोड़ा हील किया, नो प्रॉब्लम। ओके, फाइनली हमने इसे भी हरा दिया, लेकिन हमारा डिवॉर्ड भी फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अब शायद जिम लीडर ही बचा है। ओके, एक और ट्रेनर है, तो मैं अपने क्रोगन को हील कर लेता हूँ एक सुपर पोशन की मदद से। ओके, अब कर लेते हैं उससे भी बैटल। ओके, नो प्रॉब्लम। ये एक साइंटिस्ट है, तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, तो मैं इसे रिवेंज देता हूँ सीधा। ओके, इस बार शैडो बॉल देना चाहिए।
ओके, इसने एक साइकिक टाइप मूव का यूज़ किया, ये तो हम पर सुपर इफेक्टिव था। फिर से शैडो बॉल। देखते हैं नेक्स्ट एक मैलामार आ रहा है, तो मैं प्लेचिंडर को निकालूंगा और इसे फ्लाई देंगे हम। मैलामार का डिफेंस ज़्यादा होगा क्योंकि वो फाइनल एवोल्यूशन में है, इसलिए मैलामार का डिज़ाइन बहुत ही स्केरी है, ये बहुत ही डेंजर पोकेमॉन लगता है। तो उसने पे बैक का यूज़ किया। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे पास और पोकेमॉन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई दूसरा उसे फेंट कर देगा, तो मैं फिर से फ्लाई का ही यूज़ करूँगा। लेकिन इसने खुद को फेंट कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो एरन को निकाल लेता हूँ मैं। तो एरन ने रिसेंटली आयरन हेड सीखा है, एक बहुत ही अच्छा स्टील टाइप मूव, बहुत अच्छी, इसने इसे हरा दिया। देखते हैं और कितने ट्रेनर बचे हैं। ओके, तो शायद अब जिम लीडर ही हैं। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिम लीडर से बैटल करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।